The Eco Village development concept was conceived about 15 years ago in India by two NGOs, Integrated Sustainable Energy Development Association and Women's Action for Development, as a novel and integrated approach towards achieving low cost, low carbon developmental programs for rural populations. The concept involves the implementation of appropriate, inexpensive renewable energy technology and capacity building activities for climate change adaptation and mitigation in villages. The rationale for choosing villages as the focal point of this model is that these rural settlements are home not only to some of the poorest people in the South Asian region, but also to the majority of its population. The village communities are also ideal for illustrating the concept of contextually appropriate, small scale innovations for adaptation and mitigation. The project takes on a collaborative approach by deeply involving community members in the planning and implementation stages, while also giving them tools to be climate resilient. The bundle of practices under EVD include mitigation technologies like small household sized biogas plants, smokeless stoves, solar energy technology such as power solar drying units, and bamboo solar polyhouse. Training the community members in organic farming and kitchen gardening has been an important step in ensuring food security. Organic farming, which is an adaptation strategy to counter reduced agricultural productivity, makes use of organic manure or biogas slurry that improves the quality of the soil. हम वाफ्ट के साथ जो है लगभग 4-5 साल से जुड़े हुए हैं और 4-5 साल से हम ये जो जैविक खेती है इसका प्रयोग कर रहे हैं। उससे पहले नहीं करते थे। पहले हम वैसे खाद डालते, यूरिया वगैरह डालते थे थोड़ा थोड़ा ना उगाने के लिए। हम ये सोचते थे कि पौधा बड़ा हो जाएगा, जल्दी होगा, तो जैसे उसको रख दिया हमने। जैसे शिमला मिर्च लाए किचन गार्डन से, उसको अंदर रख दिया, तो आज रखेंगे कल तक वो सड़ जाएगा। ये होता है, ये होता था पहले। और जैसे अब है तो लाएंगे तो 1-2 दिन रह जाएगा। खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होती है वो चीज़ें, हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं देती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। कीड़े भी नहीं लगते हैं, कई दिनों तक चल सकती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। जब यहाँ पे संस्था आई तो संस्था ने जब हमें सिखाया कि जैविक खाद हो सकती है खेती, तो हमने सर ने हमको ये टोकरी बनानी सिखाई, ये भी ट्रेनिंग दी, टोकरी बनाई, फिर इसे भरना भी सिखाया। ये कंपोस्ट खाद की टोकरी है ना, जो इसमें बहुत अच्छी खाद बनती है, जिसमें इस उत्पादन बहुत अच्छी होती है। तब से हमारे जो ये वाफ्ट में जो हमारे समूह वाले जो रखे हैं सब खुश हैं। जिन जिन को मैंने ये कंपोस्ट खाद की टोकरी बनाई, जिन जिन को मैं बताती हूँ, सब खुश हैं लोग कि ये बहुत अच्छी खाद है, क्योंकि इसमें उत्पादन अच्छे आती है। मेरा नाम श्रीमती कीड़ी देवी है, मैं ग्राम मोड़ से हूँ और मैं 2011 से, वैसे 2011 से जुड़ी हूँ, लेकिन वॉलंटियर काम 2013 से कर रही हूँ। तो 2015 में मेरा बायोगैस बना। बायोगैस से फ़ायदा यह हुआ कि उसे गैस मिली, एक तो गोबर का हुआ जो इधर उधर बिखरा नहीं मिला, वो भी सही इस्तेमाल हुआ। एक को जैसे कि लकड़ी नहीं जलानी पड़ी, धुआं नहीं लगा, तो खाना बना, उसमें चाय बनी, खाना बना, तो सुविधा हो गई। Under the Eco Village program, plants as small as 1 cubic meter are being constructed. This allows these plants to take less space, an important requirement in these mountainous regions. In some of the areas with water scarcity in Rani Chauri, primarily due to the drying up of natural springs, these rainwater harvesting tanks have proven to be a boon to the community members. If proper filters are used, this water can also be used for drinking. हम ऐसी खेती करती है यहाँ, टैंक का पानी यूज करती है इस पे, सिंचाई सुंचाई, तब हमारी सब्जी सुब्जी उगती है। टैंक में पानी जमा होता है, आसमानी पानी, सिंचाई के, भैंस के खिलाने के, कपड़ों धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए हमारा काम आता है। फायदा फायदा है। जब से हमने पानी बनाया बहुत फायदा हुआ है हमको पानी के टैंक से। हम 7-8 बांडे पानी लाती थी दिन की कम से कम, अब हम 1-2 बांडे खाने के लिए लाती है, अब पशुओं के लिए
नहाने धोने के लिए, लेटरिन बाथरूम के लिए, किचन गार्डन के लिए, कपड़े के लिए, सब हमारा ये काम आता है ये पानी। INSEADA designed a cook stove that, besides being efficient, can also cook 2 meals at the same time. The Hira hybrid cook stove is built with bricks, sand and cement as its main building materials. The chimney of Hira Chulha is also integrated with a 15 to 20 litre water tank, so that when hot flue gases are released, they also continuously warm the water, which can then be used for various other domestic needs. Once the pipe goes on the roof, it is bent into an L shape. The end of this pipe is perforated and is immersed in a bucket of water so that the flue gases and smoke get released into the water. This way, the particulate matter of the smoke as well as some of the smoke gets settled into it and a relatively cleaner smoke gets released in the air. A small fan has been incorporated in the design, which is run by a 12-volt battery, and the charge controller attached to the battery has 2 USB ports to charge a mobile phone or even a small laptop. It is also connected to a 3 to 5 watt LED light. पहले एक ही चूल्हा था तो सारा मतलब हमारा जो ये कमरा था किचन गंदा हो जाता था, जैसे मतलब बिल्कुल काला हो जाता था। फिर धुआं ऐसा है कि धुआं जो अंदर भी जाएगा तो फेफड़े में भी तो धुआं क्या कुछ असर होगा, फिर बीमारी हो जाएगी। अब धुआं मतलब सारा ऊपर चले जाता है, इस पैर के ऊपर जाता है, तो वहाँ एक बाल्टी रख रखी है तो प्रदूषण मतलब इधर उधर नहीं जाता, वो बाल्टी में गायब हो जाता है। जब हम चूल्हों पर रसोई करते हैं तो आँख खराब होते हैं, धुआं खराब होते हैं, तो तब दवाई दवाई डालते हैं ना। अब यहाँ खाते रहे ये कारी बड़ी का जने आँखों पर आँख खराब न हो तभी चूल्हा बना। मेरे पास एक हीरा चूल्हा है जिसपे मुझे काफ़ी फायदे हैं। इससे तो एक तो गर्म पानी मिल जाता है, एक लकड़ियाँ कम लगती हैं, बहुत ज़्यादा कम लगती हैं लकड़ियाँ, जिससे मेरा स्वास्थ्य के लिए, आँखों के लिए, सबके लिए ठीक है। इससे जो धुआं निकलता है वो भी अंदर पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, धुआं भी वो पानी के अंदर जा रहा है। और लकड़ियाँ जो जितनी लकड़ियाँ मैं पहले एक दिन में जलाती थी उतनी लकड़ियाँ मैं आजकल 8-9 दिन में जला रही हूँ। The design being adopted for bamboo solar polyhouse under the EVD program is a low-cost model that is constructed out of bamboo and ultraviolet stabilized plastic. These closed structures help grow vegetables, herbs, or flowers during the off-season. They also protect the plants from being ravaged by animals, birds, and other predators. Because of its low-cost bamboo structure, this polyhouse is also significantly less expensive than conventional models that are commercially available. Low-cost bamboo-framed solar dryers can be used to hygienically dry excess produce for use in the off-season. Bamboo as a material has also been used in India to build more inexpensive and lightweight versions of solar dryers, significantly bringing down the construction costs. Importantly, the dryers also add value to the produce that can then be sold in the open market. 5 साल लगभग इसको हो गए मेरे पास सोलर ड्रायर है, जिसमें कि मैं हर चीज़ सुखा पाती हूँ। जबकि पहले हम आंगन में सुखाते थे तो उसमें धूल मिट्टी पड़ जाती थी, कभी बारिश हुआ धूप हुआ तो अंदर बाहर करना पड़ता था। तो तब से जब से मेरे पास सोलर ड्रायर है तब से मुझे बहुत सुविधा मिली। तो इसमें मैं मतलब एक फसल में लगभग 5,000 की लगभग हल्दी और मिर्च पाउडर, हल्दी का पाउडर बनाती हूँ, उसको बेचती हूँ। फिर जो घर की साग सब्जी है उसको इसमें सुखाती हूँ बिना मौसम के, मतलब फिर उसको यूज़ करती हूँ। तो आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत हौसला भी बढ़ा। पहले तो मैं बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल मुझे बातचीत नहीं निकलती थी मेरी एक दूसरे के साथ। तब से मुझे बहुत बोलने का वो भी हो गया कि मतलब दिल खुल गया बोलने के लिए। तो हम तब से तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि थोड़े मेरे पास पैसे भी देखने के हो गए, खर्च करने के लिए हो गए, कहीं जाओ आओ अपने शान शौक भी करो। Self-help groups are for thrift and credit so that women can have easy access to small amounts of credit in times of financial need. The members of these groups have reported feeling very empowered and more socially connected through their involvement in them. कुछ नहीं तो
और समूह से हमको काफी लाभ हुआ। आगे महिलाएं काफी आगे हो गई। पहले तो महिलाएं घबराती थी कि आदमी के आगे हम कैसे बोलूंगी, चुप रहो, पल्ला डाल दो सिर में। अब नहीं है, अब ठीक है। पहले तो ये था कि हम अपने घर में रहते थे, खाना बनाया, घास काटा, फिर घर में ही रहते थे, कहीं किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं होता था। अब तो बाहर के लोगों से भी थोड़ा बहुत मिल ही जाते हैं। अपने गांव में भी अपने समूह से मिलते हैं, समूह के साथ बातचीत करते हैं। और वहाँ महीने में हमारी मीटिंग होती है, फिर हम सब लोग पैसे जमा करते हैं। यहाँ समूह में 50-50 रुपए महीने की जमा करते हैं। काफी कम से कम 1 लाख हो गए थे हमारे पास। तो जब किसी का मकान बन रहा वो निकाल रही, अब सबका साइन होता है उस कागज में, तो वो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष बुलाते हैं बैंक से निकाल के, तब हमको कर्ज मिलता है। कोई ऐसे भी हैं जो पशुओं के लिए भी लाते हैं, पशु जैसे भैंस लानी है, गाय लानी है, तो उसके लिए भी इस ग्रुप से पैसा निकालते हैं। बैंक में जाओ तो कितनी बार परेशानी होती है, बैंक वाले कितने वो करते हैं, ये लाओ, वो कागज लाओ। हमारे इधर ऐसा है, सीधे अपना निकाला पैसा और काम किया।